Hello everyone, this is Amrita Mishra. Today we are going to start a new chapter, that is reproduction in flowering plants. So basically flowering plant में जो reproduction होता है वो both vegetative and sexual reproduction होता है. आज हम basically sexual reproduction के ऊपर focus करने वाले हैं. So in sexual reproduction जो organ होता है plant का जिसमें sexual reproduction होता है, that is basically the flower. Okay, so let me draw the structure of flower from where we will start relating it with the reproduction. So in the structure of flower we have many petals. As you know, it is colorful and very flourishing, and there is a structure which is the sepal. Okay, it is green in color basically. So we already understood about the sepal and petal part of the flower in morphology of flowering plants 11th chapter. So here in this flower there are two accessory parts as the colorful part and the green part, and there are two reproductive parts. Okay, so the reproductive parts we are going to draw. So another part is so in this diagram we will see four holes of the flower. So one of the hole is the sepal, and which is made up of individual. One of the hole is calyx, and it is made up of, this is the whole of this sepals is called calyx and the individual is called sepal. Then there is a hole called corolla and the individual is called petal. The whole of the male reproductive part is the androecium. The whole is actually these are androecium, and the individual of it is stamen. The whole of this female reproductive part is called gynoecium, and the individual of it is called carpel or pistil. Okay. So basically we have four holes, one is calyx, one is corolla, one is androecium, one is gynoecium. Calyx is the, let me repeat again, calyx is the whole of sepals, and your corolla is the whole of petals which is colorful part, gynoecium is the whole of carpels or pistils, and androecium is the whole of your stamens. Clear? So from all these structures, let me give you some interesting facts about the calyx and corolla. The calyx is a part of flower where it is a green part of the flower. Here photosynthesis can also occur. It actually protects the flower, the floral bud during its flourishing. Okay, and the petals or the corolla are the part of the flower which basically are colorful, and it attracts the insects and other animals to do the pollination for the flower, because pollination is a very important part in sexual reproduction. So we will divide this chapter reproduction in flowering plants into three parts. One is pre-fertilization events, fertilization events and post-fertilization events. So let me start from the pre-fertilization events. So pre-fertilization events. So in flowering plants we have pre-fertilization events which includes these things. The first thing in pre-fertilization event is that if there is a sexual reproduction, it requires gamete, right? So we require male gamete as well as female gamete. Okay. The first step is formation of male gamete, formation of male gamete. So we require the formation of male gamete before the fertilization occur.
So second one is the formation of female gamete. So as in sexual reproduction, the male gamete will transfer to the female gamete and it is fertilized inside the female body. Okay, एंड यहाँ पे क्या होता है ना, मेल गैमेट फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है और एक फीमेल गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है. देन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट. So it is called pollination. And there is another process where your pollen pistil interaction is occurring. So we'll divide the pre-fertilization event into 4 parts. One is formation of male gamete, formation of female gamete, pollination, pollen pistil interaction. So let me give you a few idea about the formation of male gamete. What is the formation of male gamete? As we know, in sexual reproduction there should be formation of haploid gametes. Okay, the process is meiosis. एंड यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है गैमेट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस. बट बिफोर दैट एक प्रोसेस होता है जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, सो बिफोर दैट एक स्टेप होता है जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्लियर. वैसे ही फीमेल में मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है और उससे पहले बिफोर दैट एक प्रोसेस होता है जिसको मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. क्लियर. फिर पॉलिनेशन होता है, फिर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है. Pollen grain will transfer from the male anther to the female stigma and where it germinate into the micropellar end of the embryo sac. Okay, so we'll start with the formation of male gamete. तो आज के क्लास में हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं कैसे मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो बेसिकली जो मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे मेल ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और मेल रिप्रोडक्टिव होल्स है. ठीक है, तो हमको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव होल फ्लावरिंग प्लांट का क्या है. सो मेल रिप्रोडक्टिव होल हमारे पास एंड्रोइशियम है. मेल रिप्रोडक्टिव होल हमारे पास एंड्रोइशियम है जो कि होल ऑफ स्टामेन्स है. सो लेट मी first talk about the stamens. What are the stamens? They are the male reproductive parts. So somehow the male reproductive part, that is stamen, look like this. Okay, so it is having 2 parts. One part, this part is called anther and this long stalk is called filament or stalk. ओके, तो आंथर जो होता है इसमें 2 लोब्स होते हैं, तो इसीलिए आंथर को क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं. इसको बोलते हैं बाइलोब्ड क्योंकि इसमें 2 लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स कनेक्टेड होते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो कि वास्कुलराइज्ड है. इसको बोलते हैं कनेक्टिव. क्या बोलते हैं, कनेक्टिव. क्लियर. और आंथर, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक आंथर में क्या होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, डिजिटल पार्ट में होता है और उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में फिलामेंट होता है और फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड आइदर इट इज अटैच्ड टू द थैलामस or it is attached to the petal. Sometimes it attached to the style only and sometimes also it attached to the tepal, but according to NCERT हम इसको thalamus और petal ही याद रखेंगे. So this is the proximal part, and this is the distal part. So if I say कि filament is attached to the attached with anther on its distal part and filament is attached with the थैलामस और पेटल ऑन इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट. ओके, सो आंथर जो होता है ये टिपिकली बाइलोब्ड होता है. इसमें 2 लोब्स होते हैं और वो कनेक्टिव से कनेक्ट होते हैं. तो कैसे दिखते हैं वो लोब्स, सो बेसिकली जो लोब्स है वो कुछ ऐसे दिखते हैं.
Okay, so this is a connective which is connecting both of the lobes. So this is the one lobe, this is another lobe. Okay, so there are two lobes in one anther which is connected by the connective. This is connective. Okay, and each lobe as you see, आपको दिख रहा होगा कि each lobe में क्या होता है ना, दो थिका है. ओके, एंड ये एक थिका है, ये एक थिका है, ये एक थिका है और ये एक थिका है. ठीक है, so each lobe is having two thica, so that's why anther is also called dithecous. It is called dithecous. क्यों? क्योंकि each anther में क्या होता है, each lobe में दो थिका होता है. अगर हम ऐसे देखेंगे टोटल आंथर में, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है नेट में कि इन ओवरऑल टोटल आंथर कितना थिका होता है, ठीक है, सो उसका आंसर होगा 4 थिका. बट अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन आंथर इज कॉल्ड एज ए टिपिकल एंजियोस्पर्मी, आंथर इज कॉल्ड एज डैश, दैट मीन्स dithecous or tetrathecous or pentathecous, so it is called dithecous. The name of the anther is dithecous because each lobe is consisting of 2 thica. But if the question comes as how many thica, total number of thica present in the anther, that answer will be 4 thica. Okay, that you have to consider because एक लोब में 2 थिका होता है. ठीक है, एक लोब में 2 थिका होता है. अब ये 2 थिका को एक दूसरे से जो सेपरेशन, यहाँ पे जो स्ट्रिएशन मार्क दिख रहा है आपको लोगों को, ये जो सेपरेट करता है 2 थिका को एक दूसरे से, ये एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, मतलब अंदर के तरफ घुसा हुआ एक ग्रूव है, इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं. और अगर 3D स्ट्रक्चर में आंथर को हम देखेंगे वो कुछ ऐसे दिखता है, और यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स दिखेंगे जो ये इस साइड में, ये साइड में और ये साइड में, जो कि आंथर के जो एक लोब को 2-2 थिका में कन्वर्ट किए हैं. ठीक है, सो ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के आंथर का 3D स्ट्रक्चर है. अगर हम 3D स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में और भी कुछ चीज़ हम ऐड कर सकते हैं. इस स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से पोलन ग्रेन देहिसेंस होता है, और मतलब रिलीज होता है, लाइन ऑफ देहिसेंस इसको हम बोल सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ देहिसेंस. Okay, so this is connective and each thica is having a group of tissues. Okay, each thica is having a group of tissues which is covered by 3 protective layer and 1 nourishing layer. Okay, so this tissues, group of tissues are actually called microsporangium. This is called microsporangium. Microsporangium. Okay, so let me talk about the microsporangium. As we are first discussing about the androecium. Androecium is having 2 parts. एक आंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है. ठीक है, आंथर को हम अगर उसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो आंथर बाइलोब्ड होता है, उसमें एक लोब यहाँ पे और एक लोब यहाँ पे होता है. एक आंथर में एक लोब में 2 थिका होता है और पूरा आंथर में 4 थिका होते हैं. ठीक है, जो लोब्स है वो कनेक्टेड है किसके थ्रू, कनेक्टिव के थ्रू कनेक्टेड है, और जो थिका है वो एक दूसरे से सेपरेट है बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव. ओके, एंड वहीं से ही तुम्हारा लाइन ऑफ देहिसेंस, मतलब पोलन ग्रेन वहीं से रिलीज होता है. अगर मैं यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाऊँ तो पोलन ग्रेन विल रिलीज फ्रॉम हियर ओनली. ओके, ये लाइन ऑफ देहिसेंस है जहाँ पे स्ट्रिएशन मार्क है, यहाँ से भी पोलन ग्रेन रिलीज हो सकते हैं. और पहले पोलन ग्रेन बनते कहाँ पे हैं, पोलन ग्रेन बनते कहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो तुम्हारे पास हमारे पास फ्लावर में माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टिश्यूज़ है, वही टिश्यूज़ पोलन ग्रेन्स बनाते हैं. ठीक है, सो कंसिडरिंग द मेल रिप्रोडक्टिव होल दैट इज एंड्रोइशियम एंड स्टामेन्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल विद द स्ट्रक्चर दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम. चलो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम. सो जितना हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हुए जाएंगे उतना हम लोग समझ पाएंगे कि हमारे पास मेल गैमेट कैसे बनता है इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, सो विल कंसिडर द माइक्रोस्पोरेंजियम देन. माइक्रोस्पोरेंजियम, तो बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम एक सिंगुलर फॉर्म है, इसका अगर प्लूरल हम लेंगे तो हमारे पास होगा माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया आंथर का एक पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो आंथर का एक पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होता है. सो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बेसिकली पोलन ग्रेन्स आर द
मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, ये है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। तो तुम लोग पूछोगे कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमेट तो हमको पता है कि हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, तो गैमेटोफाइट एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे गैमेट होता है। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में प्लांट किंगडम में पढ़े कि 2 टाइप के स्टेज होता है एक प्लांट का, एक स्पोरोफाइट स्टेज होता है और एक गैमेटोफाइट स्टेज होता है। सो यहाँ पे हम गैमेटोफाइट स्टेज तो जनरली नहीं होता है एंजियोस्पर्म में, स्पोरोफाइट स्टेज ही होता है, लेकिन उसके लाइफ साइकिल में भी थोड़ा टाइम के लिए गैमेटोफाइट स्टेज होता है, लेकिन वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में वो ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो लाइफ साइकिल है वो मोस्टली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट का मतलब ये होता है कि जो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमेट होता है, द स्ट्रक्चर विच होल्ड्स द गैमेट्स, द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग द गैमेट्स, जिस स्ट्रक्चर के पास गैमेट है उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, ओके। सो पोलन ग्रेन इज बेसिकली द गैमेटोफाइट, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट, so it is formed inside the microsporangium. Let me tell you, microsporangium is a part which is present inside the theca, and each anther is having 4 theca, okay. So each anther is having 4 microsporangium, okay. So we can say it as a tetrasporangiate, we can say as each anther is having 4 microsporangium, we can call it tetrasporangiate, okay. So we can call the typical anther as tetrasporangiate. So considering the microsporangium, इसमें 3 protective layers होते हैं. So let me draw the layers of the microsporangium. So there are 3 protecting layers in the microsporangium, and there is a nourishing layer in the microsporangium. This outer layer is called epidermis. This is called epidermis. Then after that, this is called endothecium. Endothecium. This is called middle layer. ऐसा लगता है कि मिडिल लेयर तो मिडिल में होना चाहिए एपिडर्मिस और एंडोथेसियम के बीच में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, मिडिल लेयर आफ्टर एंडोथेसियम होता है, ठीक है, ये याद रखना। मिडिल लेयर एम से मिडिल स्टार्ट होता है, एम से मल्टीपल स्टार्ट होता है, सो मल्टीपल लेयर होता है मिडिल लेयर। मोस्टली जो एपिडर्मिस और एंडोथेसियम है सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, और मिडिल लेयर में मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमने देखा था, एक आंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, और इस लेयर ऑफ टिश्यू का नाम है बेटा टैपेटम। क्या बोलते हैं इसको? टैपेटम। टैपेटम क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा? इसका मेन फंक्शन है नॉरिसिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब डेवलप हो रहा होता है, ये नॉरिश करता है, बेसिकली किसको नॉरिश करता है? पोलन ग्रेन जैसे डेवलप होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल एक फॉर्म होता है, उसको नॉरिश करता है, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको नॉरिश करता है, उसको खाना देता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है व्हेन द पोलन ग्रेन इज फॉर्म। जब पोलन ग्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तब उसको नॉरिश करता है। तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, किसके अंदर? टैपेटम के अंदर, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अच्छा, और एक चीज़ है, टैपेटम जो सेल है वो सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए एक टैपेटम, मतलब टैपेटम टिश्यू जो है वो पर्टिकुलर है, लेकिन ये जो बाहर वाला जो लेयर है वो सारे माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए कॉमन लेयर्स है। और ये तीनों लेयर क्या करते हैं? 2 चीज़ करते हैं, एक करते हैं प्रोटेक्शन माइक्रोस्पोरेंजियम को, और प्लस उसके साथ ये लोग क्या करते हैं? देहिसेंस ऑफ आंथर, देहिसेंस ऑफ आंथर, ओके, आंथर का देहिसेंस, और यू कैन से पोलन ग्रेन। तो बेसिकली पोलन ग्रेन का देहिसेंस करते हैं ये 3 लेयर्स, देहिसेंस में हेल्प करते हैं। दे सीक्रेट अ लिपिड मॉलिक्यूल, फ्लूइड लाइक लिपिड मॉलिक्यूल, और जिसके वजह से यहाँ अंदर जो पोलन ग्रेन बना हुआ होता है वो देहिसेंस मतलब फ्लो करके देहिसेंस हो जाता है। और तीनों लेयर्स प्रोटेक्शन में काम करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक क्रूशियल काम हो रहा है जो कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है।
सो माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में जाके पोलन ग्रेन में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो इसके अंदर जो ये येलो कलर का मैंने सेल बनाया है, ये सब सेल्स होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के, स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स होते हैं। सो ये वेरी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, इस टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे। सो व्हाट इज स्पोरोजिनस टिश्यू? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। सो कहाँ पे होते हैं, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू पहले क्या थे? प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, ये पहले थे प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। बहुत सारे माइटोसिस के बाद जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हुआ तब ये स्पोरोजिनस टिश्यू में कन्वर्ट हुए, ठीक है। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी डेवलप हुआ। सो इन दैट स्पेशलिटी स्पोरोजिनस, ईच एंड एवरी स्पोरोजिनस टिश्यू बिहेव लाइक अ पोटेंशियल पोलन। सो ईच एंड एवरी स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम, क्या हो गई है? बिकम पोटेंशियल पोलन। सो दे गॉट द पावर to convert into the pollen grain. So that power is because of their potentiality to become a pollen. तो ये सब एक मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि पोलन ग्रेन में, सारे सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ईच सेल, अगर मैं बोलूँ कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड एज पोलन मदर सेल। तो ये जब डेवलप हुए, सो ईच सेल बिकम पोलन मदर सेल, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, MFC भी बोल सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर बाद में जाके जब फीमेल गैमेट बनेगा उसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे। सो शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल दोनों एक जैसे लिखते हैं ना, तो एक जैसे लगता है, तो इसीलिए पोलन ग्रेन का जो मदर सेल है और माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको हम पोलन मदर सेल बोलेंगे, और मेगास्पोर मदर सेल को MMC शॉर्ट फॉर्म में उसको याद रखेंगे, ठीक है। सो ईच स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम्स अ पोटेंशियल पोलन एंड विच बिहेव्स लाइक अ पोलन मदर सेल, ओके। सो ईच पोटेंशियल पोलन बिहेव लाइक पोलन मदर सेल। एक चीज मुझे बताओ कि पोलन मदर सेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? तो पोलन मदर सेल ऑब्वियसली ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये एक जर्म सेल है जिससे पोलन ग्रेन्स बनेगा और मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फिर मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। सो पोलन मदर सेल इज अ डिप्लॉइड सेल and the potential pollen mother cell, they develop, the cell size increase, they got all the nutrients from the tapetum. So one question is there, if the tapetum is present on the outer side, okay, it is nourishing the sporogenous tissue. तो स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर होते हैं। सो स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर होते हैं। तो ये जो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में जो आते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू टैपेटम के, वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन पा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको डायरेक्ट न्यूट्रिशन टैपेटम से नहीं मिल सकता। तो कहाँ से मिलेगा वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन? वो पहला वाला स्पोरोजिनस टिश्यू से दूसरा वाला को, दूसरा वाला से तीसरा वाला को, तीसरा वाला से चौथा वाला को, ऐसे उनको न्यूट्रिशंस ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। सो ये एक सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है। तो सिंक्रोनाइज्ड वे में ये जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है। फिर सारे स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम द पोटेंशियल पोलन एंड दे बिहेव लाइक पोलन मदर सेल एंड दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। वो कैसे नेचर होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। अभी तक मेल गैमेट और हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये पोलन मदर सेल अभी पहले वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर वो करेंगे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, फाइनली माइक्रो गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। अब माइक्रो वर्ड इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, मेल गैमेट्स अगर जेनेसिस हो रहा है तो मेल गैमेट्स जो है वो स्मॉल बनते हैं, माइक्रो बनते हैं, और जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होता है। तो अगर माइक्रोस्पोर बनाना है और मेल गैमेट बनाना है, मेल गैमेटोफाइट बनाना है, जो प्रोसेस होगा उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे क्योंकि स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल के केस में क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्पोर बनता है वो लार्ज स्ट्रक्चर का बनता है, इसलिए उसको मेगा वर्ड यूज करते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बेसिकली अभी हम नेक्स्ट पेज में क्या समझेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी तक हमने पोलन मदर सेल बना लिया है,
पोलन मदर सेल से अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? सो पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? Microsporogenesis is the formation of, it is the formation of microspore. It is not a gamete. बच्चों ये गैमेट नहीं है, ये गैमेटोफाइट हो सकता है, इससे गैमेटोफाइट डेवलप हो सकता है, लेकिन ये गैमेट नहीं है, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट है क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल प्लॉइडी क्या है? 2n, ओके। और माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी क्या होगा पता है? n। इसका मतलब ये है कि अगर पोलन मदर सेल 2n है, माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी n है, दैट मीन्स कैसे बनेगा पोलन माइक्रोस्पोर? मियोसिस के प्रोसेस में। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस प्रोसेस और रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन डिवीजन, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग क्या करेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल को डायग्रामेटिकली विल अंडरस्टैंड हाउ द माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड। So for example, this is microspore, this is diploid nature. Each and every sporogenous tissue act as microspore. Okay, whatever I am drawing here, whatever I am letting you understand here will be applicable to every microspore mother cell. Okay, so this is 2n microspore mother cell, the ploid is 2n. There is meiosis. Okay, so there is meiosis. The complete meiosis the meiosis is going to complete with meiosis 1 and meiosis 2. Okay, so the first one is meiosis 1. meiosis 1, as you know meiosis 1 में क्या होता है? 2 सेल्स बनते हैं। चलो 2 सेल बनाते हैं। so, कितना सेल बनेगा? 2 सेल बनेगा। हाप्लॉइड या डिप्लॉइड बनेंगे? हाप्लॉइड बनेंगे, लेकिन meiosis 2 में फिर DNA हाफ होगा, ठीक है। तभी meiosis 2 होगा, meiosis 2, then there will be formation of। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है बेटा, मैक्सिमम केस ऑफ हमारे एंजियोस्पर्मिक केस में क्या होता है? जो मियोसिस होता है इन पोलन मदर सेल, ये पोलन मदर सेल है। यहाँ पे जो मियोसिस होता है एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स। यहाँ पे हमने ट्रांसवर्स कर दिया, एक लॉन्गिट्यूडनल भी होगा, ठीक है। तो कैसे सेल्स बनेंगे? ऐसे सेल्स बनेंगे 1 2 3 4। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स, ओके। एंड ये डिवीजन में क्या होता है? देखो बेटा, ये जो सेल है इसके ऊपर सेल वॉल है, राइट। बेसिकली जो पोलन मदर सेल है ना, उसमें जो सेल वॉल है उसमें एक सेलुलोज पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड का डिपोजिशन होता है। वो पॉलीसैकेराइड क्या है? वो कैलोज, वो है कैलोज, ठीक है। सो वो जो पॉलीसैकेराइड कैलोज है वो रिटेन रहता है जब तक कि पूरा मियोसिस कंप्लीट नहीं हो जाता। सो देयर इज 4 सेल्स आर फॉर्म बट द कैलोज लेयर इज स्टिल देयर, ओके। वो कैलोज लेयर अभी तक उसी में है। तो ये सब हैप्लॉइड हो चुके हैं और ये सब माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। माइक्रोस्पोर नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोर्स है। कितने माइक्रोस्पोर्स है? 4 माइक्रोस्पोर्स है। सो देयर आर 4 माइक्रोस्पोर्स इन वन स्ट्रक्चर, ओके। 4 माइक्रोस्पोर्स, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है, ये पॉलीसैकेराइड का लेयर होता है, इसको बोलते हैं कैलोज, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मतलब मियोसिस कंप्लीट हो गया। 1 diploid cell converted into 4 haploid cells, all cells are joined together। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में मैक्सिमम केस में देखो ये लीनियर भी हो सकता है, टी शेप्ड भी हो सकता है, डिफरेंट शेप का हो सकता है, लेकिन टिपिकल एंजियोस्पर्म में बेसिकली जो माइक्रोस्पोर होता है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म में होता है, ठीक है। और टेट्राड फॉर्म में और 4 सेल्स फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी क्या होगा?
ये जो कैलोज लेयर है ये लेयर अभी बिगड़ेगा, मतलब ईच माइक्रोस्पोर टेट्राड में कैलोज लेयर जो है वो ब्रेक डाउन करेगा, डीजेनरेट होगा। कैसे डीजेनरेट होगा ये तो हमको दिया नहीं, ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं कि कैसे डीजेनरेट होगा कैलोज लेयर। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो टैपेटम है वो सिर्फ यही फंक्शन नहीं करता है कि नरिश करेगा किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू, इट ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसाइजिंग सम केमिकल्स लाइक it synthesize the Calais enzyme. Okay, so in presence of Calais enzyme, in presence of Calais enzyme, in presence of Calais enzyme, the callose layer degrades. ये Calais कहाँ से synthesis हो रहा है, tapetum से synthesis हो रहा है, कहाँ से, tapetum से synthesis हो रहा है, ठीक है। So tapetum is not just a nourishing tissue, it also synthesize an enzyme called Calais. सो कैलेस क्या करता है, जो कैलोस का लेयर है उसको डिग्रेड करता है। व्हेन द माइक्रोस्पोर टेट्राड इज फॉर्म्ड, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, कैलेस क्या करता है, कैलोस को डिग्रेड करता है। सो ऑल दिस इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स आर बीइंग सेपरेटेड। जो इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर हो जाता है, ये एक इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल, है कि नहीं, सारे हैप्लॉइड्स हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। सो अभी ये बन गया क्या, माइक्रोस्पोर, ये बन गया माइक्रोस्पोर, और इसी को तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो पोलन मदर सेल से मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनना, ठीक है, इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास मेल गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हुए, ठीक है। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन गया है और माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में जाके कन्वर्ट होता है पोलन सैक में, ठीक है। लेकिन पोलन सैक के लिए तो पोलन ग्रेन्स बनना चाहिए ना, तो पोलन ग्रेन कहाँ से बनेगा, इसी माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन्स बनेंगे, इसी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर आर नॉट द गैमेट्स, these are also they are the precursor or the structures which are in future में जाके वो जो गैमेट तो फाइट में कन्वर्ट होने वाले हैं, फिर गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है। लेकिन हम लोग अभी देखने वाले हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन द फ्लावरिंग प्लांट। और ये सारे इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, एंथर में हो रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एंथर के बारे में पढ़ा। एंथर जो कि जो मेन ऑर्गन है वो फिलामेंट के साथ अटैच हुआ है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है फिलामेंट विद एंथर इज द एंड्रोइशियम, ओके। इट इज अ होल ऑफ द स्टामेन्स, ओके। सो स्टामेन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसमें एंथर होता है, एंथर बाइलोब्ड डाइथिकस होता है। ईच एंथर में 4 थिका होते हैं, लेकिन ईच लोब में दो थिका होता है, इसलिए उसको बाइलोब्ड डाइथिकस बोलते हैं। एंथर में क्या होता है ना, पूरा जो स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वो सेल्स होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू का, जो सेल्स पोटेंशियल पोलन एक्ट करते हैं। वही पोटेंशियल पोलेन्स विल बिहेव लाइक अ पोलन मदर सेल being nourished by the tapetum, okay, which you will divide by the process of meiosis to form the microspore tetrad, and microspore tetrad will convert into microspores by the help of the Calais enzyme which is secreted by tapetum, okay. Again tapetum will help. So tapetum basically कहाँ पे help करता है पता है, tapetum microspore mother cell या pollen mother cell बनाने में help कर रहा है, मतलब nourishment दे रहा है, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड वे में। फिर कैलेज एंजाइम प्रोवाइड कर रहा है, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है उससे माइक्रोस्पोर बनाने में कैलेज एंजाइम दे रहा है, ठीक है। फिर अभी माइक्रोस्पोर जब पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा तो बेसिकली टैपेटम ही वही स्ट्रक्चर है जो एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल शायद है, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग फॉसिल है, जो कि हमको फॉसिल स्टडी में अभी तक के पोलन ग्रेन से मिला है। समझ में आ रहा है। So we'll see the microgametogenesis in the next page. So there is microgametogenesis. So what is microgametogenesis? अभी तक के हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं, ठीक है। So microspore is formed. So microgametogenesis is माइक्रोस्पोर से क्या बनना है, गैमेट बनना है। कौन सा गैमेट बनना है, मेल गैमेट बनना है। किसमें मेल गैमेट बनना है, तो फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट बनना है, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है।
मेल गैमेट हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली माइटोसिस प्रोसेस होगा, यहाँ पे तो मियोसिस नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं माइक्रोस्पोर। पहले से हमको पता है कि माइक्रोस्पोर एक स्ट्रक्चर है जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये याद रखना। अगर मैं लेती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देर इज 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, सो हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड? 20 multiplied by 4, that means 80 microspores will be formed. Okay, so how many male gametes will be formed? That will be cleared in this context. इस context में हम clear करेंगे कि कितना male gamete बन सकता है, ठीक है। so ये क्या है? माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है बेटा। माइक्रोस्पोर में पहले कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ एडिशन होता है, कुछ स्ट्रक्चर में कुछ पहले चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो मैं एक फुल डायग्राम बनाती हूँ अच्छे वाले। सो क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं? पहले तो एक आउटर साइड में एक डिपोजिशन होता है। देखो ये जो येलो कलर का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये आउटसाइड का एक डिपोजिशन है। ये कैरोटीन डेरिवेटिव है बेटा, ये कैरोटीन डेरिवेटिव है, और ये दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल है, केमिकल है। ना ये एसिड में पिघलता है, ना ये बेस इसका कोई कुछ कर सकता है, ना कोई एंजाइम कुछ कर सकता है, और इसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है इसका? स्पोरोपोलेनिन। इसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। दिस इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। इट इज अ मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ कैरोटीन derivative. Okay, it is not going to be destroyed, it is not destroyed by acid, base और enzymes, ठीक है। सो ये जो स्पोरोपोलेनिन का पूरा लेयर बना है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? ये पूरा लेयर है एक्साइन का। द नेम ऑफ दिस लेयर इज एक्साइन, ओके। and it is also called as living fossil. Sporopollenin is also called as living fossil. क्यों living fossil बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये खराब ही नहीं होता है। तो when you study, जब तुम fossil study करते हो तो you will get sporopollenin in the geographical area. समझ में आ रहा है? So हम sporopollenin is एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और हम माइक्रोस्पोर से ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बाद में बताऊंगी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो अभी उसके बाद वाला जो लेयर है, आफ्टर द उसके बाद वाला जो लेयर मैं बना रही हूँ, देखो ये एग्जैक्टली सिमिलर टू द सेलुअल है, लेकिन लिग्निन डिपोजिशन नहीं है। क्या क्या है इसमें? इसमें है सेलुलोज, इसमें है हेमीसेलुलोज, और उसके साथ है क्या? पेक्टिन। सो ये जो लेयर है इसका नाम क्या है? इंटाइन। जैसे ये आउटर लेयर है एक्साइन, आउटर एग्जिट लेता है वहां से, मतलब पूरा बाहर वाला लेयर। इनर जो लेयर है इंटाइन, ओके। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन और इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। ये डिग्रेड हो सकता है, ठीक है, ये डिग्रेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुम लोग देख रहे होगे कि इस स्पोरोपोलेनिन के बीच में कुछ गैप्स है, ठीक है। ये जो गैप्स है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं जॉर्म पोर्स। क्या बोलते हैं? जॉर्म पोर्स। ये पोर्स है जिसमें एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि रिजिड नहीं है। तो ये क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ द जॉर्म पोर इन द फ्लावरिंग प्लांट? सो बेसिकली इस जॉर्म पोर से क्या बनता है? पोलन ट्यूब बनता है। अरे भाई अगर पूरा आउटर स्ट्रक्चर हो जाएगा रिजिड स्ट्रक्चर तो पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगा, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे होगा? गैमेट का बीच में फ्यूजन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है? इसको जॉर्म पोर बोलते हैं। ये एब्सेंट होता है, इसमें स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, ताकि यहाँ से तुम्हारे पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सके, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंशिएट हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसमें आउटर लेयर बन रहा है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन कहाँ से बनता है? टैपेटम से ही बनता है। ये टैपेटम से है बेटा, टैपेटम से ही बनता है, ठीक है। तो टैपेटम 3 जगह पे हेल्पफुल है, एक तो नॉरिश करने में, दूसरा कैलेज एंजाइम में, तीसरा स्पोरोपोलेनिन बनाने में, बहुत काम है उसका, ठीक है।
तो जहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है एक्साइन लेयर में उसको जर्म पोर्स बोलते हैं, वहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन में मिनिमम तीन पोलन जर्म पोर्स होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड है, सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड है, ठीक है। यही माइक्रोस्पोर वाला कंडीशन है, लेकिन माइक्रोस्पोर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, द प्री मैच्योर पोलन ग्रेन। अभी मैच्योर नहीं हुआ है पोलन ग्रेन, तो इसको हम प्राइमरी पोलन ग्रेन और अनमैच्योर पोलन ग्रेन, प्री मैच्योर पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। इसको प्राइमरी पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। सो पोलन ग्रेन का जो साइज होता है वो कितना होता है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर का होता है। 25 टू 50 माइक्रोमीटर का जो साइज होता है, डायमीटर होता है, वो पोलन ग्रेन का होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन में कुछ डिवीज़न होते हैं जो जिससे हमारे मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। माइक्रोस्पोर से गैमेट बनना है, मेल गैमेट बनना है। मेल गैमेट का नाम भी हम देखेंगे। तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में पोलन, ये प्राइमरी पोलन ग्रेन से अभी मैच्योर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा। This is the exine layer which is made up of sporopollenin. The same structure I am making that was in the previous diagram. ये इंटाइन लेयर है और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस था, ठीक है। सो ये जो न्यूक्लियस है, अभी ये न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है, जितने भी जिस प्लांट का क्रोमोसोम होंगे उसमें एक नॉन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल डिवीज़न होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, ओके। सो यहाँ पे एक माइटोसिस होता है और ये फास्ट माइटोसिस है, माइटोसिस 1 बोल सकते हैं, फास्ट माइटोसिस है। और ये फास्ट माइटोसिस में सिमेट्रिक वे में नहीं होता है, एसिमेट्रिक वे में, क्योंकि ये प्लांट का सेल है। देखो प्लांट के सेल में सेंट्रियोल तो नहीं होते हैं, ठीक है। सो सेंट्रोजोम नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है, तो इसीलिए सिमेट्रिक डिवीजन होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक डिवीजन होता है। आफ्टर द एसिमेट्रिक डिवीजन हाउ द पोलन ग्रेन लुक्स लाइक। तो एसिमेट्रिक डिवीजन के बाद पोलन ग्रेन कैसा दिखेगा देखते हैं। सो एक्साइन लेयर as intact as that, there is germ pore and there is intine layer also, but due to division there is formation of 2 cells. कितना सेल बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं। So there is formation of 2 cells. One is having very small nucleus. एक सेल में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, एक सेल में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और एक सेल जो बनता है उसमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बट साइटोकाइनेसिस में थोड़ा टाइम लगता है। सो एक लार्ज न्यूक्लियस बनता है, एक स्मॉल न्यूक्लियस बनता है, एक वैक्यूल यहाँ पे रहता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म कम रहता है। यानी कि यहाँ पे एक सेल बन जाता है साइटोप्लाज्म कवरिंग वाला, विथ सेल वॉल ऑल्सो कवर विथ इट, एंड यहाँ पे और एक सेल, मतलब 2 सेल बनते हैं। एक सेल जो बनता है यहाँ पे दोनों हैप्लॉइड सेल होते हैं, क्योंकि माइटोसिस हुआ है तो दोनों हैप्लॉइड सेल होंगे। इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल। और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। सो ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन। लेकिन हर एंजियोस्पर्म में इसको मैच्योर पोलन ग्रेन नहीं बोलेंगे, मैं बताऊंगी क्यों नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 सेल्स बनते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन दोनों गैमेट नहीं है। जो गैमेट है जो बिहेव करेगा बाद में जाके फर्टिलाइज होगा, फ्यूज होगा विद द फीमेल गैमेट एंड द पोलन न्यूक्ली, दैट इज द जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल मेल गैमेट होता है। तो इसका मतलब वेजिटेटिव सेल क्या होता है, ये गैमेट ही नहीं है, ये गैमेट जैसा बिहेव ही नहीं करता है। वेजिटेटिव सेल इज it makes the pollen tube, the generative cell nourishes the generative cell basically, and it degenerate the nucleus, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाता है, सिर्फ जेनरेटिव सेल ही गैमेट बिहेव करता है, ठीक है। सो इसको हम मैच्योर पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। लेकिन
कितने एंजियोस्पर्म में हम मैच्योर पोलन ग्रेन इसको बोल सकते हैं? अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ओके हमारे जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, वो 2 सेल स्टेज में होता है। कितने सेल स्टेज में होता है? 2 सेल स्टेज। मतलब एक होता है उसमें क्या, जेनरेटिव सेल, एक होता है उसमें 1 इज जेनरेटिव सेल एंड दूसरा क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। तो हो गया ना टोटल 2 सेल स्टेज। तो 2 सेल स्टेज में मैच्योर पोलन ग्रेन होता है। और ये पोलन ग्रेन क्या है, गैमेटोफाइट है। मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, सो पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। मैंने बताया था कि बेटा गैमेटोफाइट हम उसको बोलेंगे जिसमें गैमेट होगा। तो बताओ मुझे पोलन ग्रेन में गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है कि नहीं है? गैमेटोफाइट क्योंकि इसमें गैमेट है, जेनेटिक सेल इज द गैमेट, यस और नो? ओके, सो जेनेटिक सेल क्योंकि ये गैमेट है तो ये पूरा स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है। और पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज द मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होता है जिसमें एक जेनेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है। तो और 40% का क्या होगा, तो वो बोलेंगे कि मेरा क्या होगा। सो और जो 40% होते हैं उसमें क्या होता है, एंजियोस्पर्म में उसमें क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है इसमें क्या होता है और एक डिवीजन होता है। सो जेनेटिव सेल बेसिकली डिवाइड फर्दर एंड सेकेंड माइटोसिस अकर्स। ओके, उसी डायग्राम में मैं बना रही हूँ, देखो। सो 40% में क्या होता है, जेनेटिव सेल डिवाइड फर्दर एंड दे फॉर्म अनदर जेनेटिव सेल। सो देयर इज अनदर जेनेटिव सेल इन द पोलन ग्रेन ओनली। ओके, पोलन ग्रेन के अंदर ही दूसरा जेनेटिव सेल बनता है। किससे बनता है, यही वाले जेनेटिव सेल से। इसका क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस। सो इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस की वजह से पहला वाला जेनेटिव सेल और एक जेनेटिव सेल बनाता है जो कि हैप्लॉइड है, यानी कि ये पूरा पोलन ग्रेन में 3 सेल्स बन जाते हैं। इसको बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं, 3 सेल्ड स्टेज। इसमें कितने सेल्स बनते हैं, 3 सेल्स बनते हैं। 1 इज वेजिटेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल, सेकेंड 1 जेनेटिव सेल एंड थर्ड 1 जेनेटिव सेल। मतलब जेनेटिव सेल कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। वेजिटेटिव सेल कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। टोटल कितना सेल बन रहा है, 3 सेल बन रहा है। सो इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म देयर इज 3 सेल स्टेज, जहाँ पे मेल गैमेट्स 2 होते हैं, क्योंकि जेनेटिव सेल तो मेल गैमेट होते हैं ना, वेजिटेटिव सेल 1 होता है। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, एनटीए को पसंद है, तो वो पूछ लेता है कि 40% एंजियोस्पर्म में कितने सेल स्टेज होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म में कितने सेल होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेसिकली, क्योंकि इतना सारा पढ़ना होता है और एग्जाम में अबाउट 32 चैप्टर्स आप लोग एग्जाम दे रहे हो, 32 चैप्टर का। तो एक चैप्टर में तो आपको याद रहेगा, बहुत सारे चैप्टर पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है। सो इफ आई एम राइटिंग 60% एंड देयर इज 2, ओके, सो let me make relationship between this. Okay, if I am writing 40% and writing 3 cell stage, okay, so if you multiply 6 with 2, there will be, the answer will be 12, right? So if you multiply 4 with 3, the answer will be 12. So you cannot change it. तो बेसिकली क्या होता है, आपको अगर कंफ्यूजन भी होता है कि 60% 3 हो सकता है क्या, ठीक है, एक 3 होगा एक 2 होगा, राइट। 60% को 3 में 6 को 3 में मल्टीप्लाई करो 18 आ जाता है, और 40 को 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करो 8 आ जाता है। सो ये मैच नहीं कर, तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, मैच करवाना है कि अगर दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 12 होता है जैसे, ठीक है। ये एक छोटा मोटा ट्रिक है जिससे आप कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज है और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल गैमेट्स एक ही बनता है 60% एंजियोस्पर्म में, नो। 60% एंजियोस्पर्म में भी मेल गैमेट्स 2 बनते हैं। सो देयर आर 2 मेल गैमेट्स फॉर्म, डबल फर्टिलाइजेशन ही होगा, लेकिन पोलन ग्रेन में एक मेल गैमेट बनता है। फिर जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है इनसाइड द योर स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, जो ओवरी के पास अंदर जाके ओव्यूल के थ्रू, माइक्रोपेलर एंड के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंट्री करता है। उसी जर्मिनेशन के इनिशियल फेज में क्या होता है, जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है, जैसे कि यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, इसी के अंदर ही 2 जेनेटिव सेल्स बन जाते हैं। किसमें, 60% एंजियोस्पर्म में, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर बनने के बाद माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो जो माइक्रोगैमेट है वो कौन है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में कितने सेल्स होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल 60% एंजियोस्पर्म में, 3 सेल
40% एंजियोस्पर्म में होता है, लेकिन मेल गैमेट एट द एंड 2 बनेंगे। तो हमारे पूरा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था, उसका पहला जो स्टेप था, हमने देखा था कि मेल गैमेट कैसे बनता है, जिसको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोल रहे थे। फिर उसके अंदर हम पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े, फिर माइक्रो गैमेटोजेनेसिस पढ़े, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में स्पोर बन रहा था, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बन रहा था, और फाइनली हमको क्या मिल गया, मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर अभी हमारे पास गैमेट्स है। अभी ये जो पोलन ग्रेन है, इसका बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स कैन बी एक्ट एज द एलर्जिक एलिमेंट, जैसे कि पार्थेनियम है, उसको हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर पोलन ग्रेन्स को आप यूज़ कर सकते हो एज न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, जैसे एथलीट्स और रेस हॉर्स उसको यूज़ करते हैं एज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। पोलन ग्रेन्स को तुम स्टोर कर सकते हो, इसका एक वायबिलिटी पीरियड होता है, जिसके जो पीरियड के अंदर ही आपको उसमें स्टिग्मा में वो पॉलिनेट होगा, फर्टिलाइज करेगा योर एग को और फीमेल गैमेट को, और पोलन ग्रेन को तुम स्टोर कर सकते हो, जैसे सीड बैंक बनाते हो ना, पोलन ग्रेन का बैंक बना सकते हो। So this is all about your microsporogenesis and microgamentogenesis. Thank you all. I hope this video will be helpful for you.